Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Gujarati વ્યાકરણ સમાનાર્થી શબ્દો જોઈશે. સમાનાર્થી શબ્દો કોને કહે છે? તો એમનો ઉત્તર છે સમાનાર્થવાળા શબ્દોને સમાનાર્થી શબ્દો કહે છે. સમાનાર્થી શબ્દો શા માટે જાણવા જરૂરી છે? તો એનો ઉત્તર છે સમાનાર્થી શબ્દો જાણવાથી આપણું શબ્દ ભંડોળ વધે છે. આપણી ભાષાની લેખન શક્તિ અને વર્ણન શક્તિ વધે છે. જ્યારે આપણે પાસ શબ્દનો ભંડોળ હોય તો આપણે જો લેખન શક્તિ હોય કે આપણને નિબંધ અથવા અહેવાલ લેખન સ્ટોરી વગેરે આ બધું લખવાનું હોય તો આપણે પાસે સમાનાર્થી શબ્દો હોઈએ જરૂરી છે. કેમ કે સમાનાર્થી શબ્દ જોડે આપણા જો લેખન શક્તિ છે ને એમાં વધારે આપણે મદદ મળી શકે. તો એમના આગળ આપને જોઈશે ઉદાહરણ કે જો હવે અંતરિક્ષ, અંબર, આકાશ, આપ, ગગન, નભ, વ્યોમ કે આપણે સ્કાય કો આપણે શું કહીએ કે આટલું બધું કહી શકે. અંબર, આકાશ, આપ, ગગન, નભ, વ્યોમ. જોયો તમે? અને બીજું અંધકારને આપણે અંધારું પણ કહી શકીએ અને તમસ પણ કહી શકીએ. એની પછી અકસ્માત, એની ઇન્સિડન્ટ, એને અચાનક પણ કહી શકે, અણધાર્યું પણ કહી શકે, એકદમ, એકાએક, ઓચિંતું. અનેક શબ્દો છે. અક્ષી એની નેત્ર, એની આંખ, આઈઝ, આંખ, ચક્ષુ, દગ, નૈન, નેત્ર, લોચન. એના પછી અગ્નિ એની ફાયર, અનલ, પાવક, વહી, હુતાશાન, અજવાળું, ઉજાસ, પ્રકાશ, અડગ એની અતિશય, અત્યંત, ખૂબ, પુષ્કળ, અનુચર, ચાકર, દાસ, નોકર, સેવક, અબરખો, અભિલાષા, ઈચ્છા, કામના, કોળ, ઓષણા, અમી, અમૃત, પિયુષ, સુધા, અમીર, તવાંગર, ધનવાન, ધનિક, પૈસાદાર, શ્રીમંત, અરવિંદ, ઉત્પલ, કમળ, પંકજ, પદ્મ, પુંડરીક, રાજીવ, આવાજ, દોષ, નાદ, નિનાદ, રવ, અસુર, દાનવ, દૈત્ય, રાક્ષસ, આદિત્ય એટલે સનને આપણે પણ આટલું બધું કહી શકીએ. ભાનુ, મિહિર, રવિ, સૂરજ, સૂર્ય, ભાસ્કર, દિવાકર, દિનકર, આબરૂ, કીર્તિ, ખયાતિ, નામના, શાક, ઇજ્જત. એની આપણે ઇમેજને આટલું બધું નામ જોઈએ. આવાસ, ઘર, નિકેતન, આવાસ એની જहाँ हम रहते हैं તો એમને કહે છે કે ઘર, નિકેતન, નિવાસ, ભવન, વાસ, સદન. ઉદ્યમ એની મહેનત કરના, પુરુષાર્થ, મહેનત, શ્રમ, ઉર, કાળજુ, દિલ, હૃદય, હેન્ડુ, હૈયું. કંગાળ, ગરીબ, દરિદ્ર, દીન, નિર્ધન, રંગ. કાયા, તન, દેહ, શરીર. કિરણ, રશ્મિ, કર. ઘાસ, તરનું, તૃણ. ચંદ્ર, ઇન્દુ, મયંક, શાસંક, સુધાંશુ, સુધાકર, સોમ. ચોખ્ખું, નિર્મલ, વિમલ, વિશુદ્ધ, સાફ, સ્વચ્છ. જંગલ, અરણ્ય, કાનન, રાન, વન. જનની, માં, માતા. જીવનિકા, પડદો, ચાક. તમામ, બધું, સંપૂર્ણ, સર્વ. દરિયો, અબધી, ઉદધી, જલ્દી, વરિદી, સમુદ્ર, સાગર, રત્નાકર. દાન, સખાવત, ખેરાત. ધરતી, અવની, ધરા, પૃથ્વી, વસુંધરા, ભૂમિ, ભૌમ, ભોંય. પંખી, ખગ, ખેચર, પક્ષી, વિહંગ, વિહાગ. પથ્થર, પહાડ, પાષાણ. પહાડ, આદિ, ગીર, નગ, પર્વત, શૈલ. પાણી, ઉદક, જળ, તોય, નીર, વરી, સલિલ.
फूल, कुसुम, गुल, पुष्प, सुमन। मबलक, अतिशय, अत्यंत, खूब, पुष्कळ। रात, निशा, यामिनी, रजनी, रात्रि, विभावरी, सवरी। लोही, रक्त, रुधिर, शोणित। वृक्ष, झाड़, तरु, द्रुम, पादप। सुगंध, खुशबू, परिमल, फोम, महक, सौरभ। सोनू, कंचन, कांचन, स्वर्ण, हेम। तो ये તે અમારે સમાનાર્થી શબ્દ. એના પછી આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જોઈશે. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો. ચાલો હવે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો કોને કહેવાય? તો એમનો ઉત્તર છે વિરુદ્ધ અર્થ ધરાવતા શબ્દોને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો કહે છે. यानी विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड. एक शब्द का उल्टा यानी उसको कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શા માટે જાણવા જરૂરી છે? તો વાક્યને વધુ સચોટ રીતે રજૂ કરવા, વિધેયમાંથી નિષેધ કે નિષેધમાંથી વિધેય વાક્યમાં ફેરવા માટે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો જાણવા જરૂરી છે. તો આઈએ આપણે આગળ આપણે જોઈએ. ઉદાહરણ છે કે નીચે કેટલાક વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપ્યા છે તેના અભ્યાસ કરો. કેટલાક વિરુદ્ધાર્થી વિશેષણો. અઘરું, સહેલું. अड़प, अल्प, थोड़ू. अगरू यानी हार्ड और उसका उल्टा क्या आएगा? सहलू, इजी. अड़प, अल्प, थोड़ू. अड़क यानी ज़्यादा, अल्प थोड़ू यानी कम. आबोल, बोल को यानी जो कम बोलता है वो आबोल और जो ज़्यादा बोलता है वो बोल को. अमीर, गरीब. उछीनु, रोकड़ू. उत्तम, अधम. उद्यमी, आड़सू यानी जो मेहनत करता है उसको हम उद्यम कहते हैं और जो उसका अपोजिट आएगा आड़सू. हल्कू, भारी. कड़वू, मीठू. काचू, पाकू. खरू, खोटू. दूर, अंधू, पासे, नजीक यानी यहाँ पे दूर और आधू, पासे, नजीक. नानो, मोटू. छोटा, बड़ा. निश्चित, अनिश्चित. नूतन, प्राचीन यानी पुराणों. परिणित, अपरिणित. परिणित यानी मैरिज जिसकी शादी हो जाती है और अपरिणित यानी अनमैरिड. पहलू, छेल्लू. फर्स्ट एंड लास्ट. पारकू, पोतानु. पराया और खुद का. भद्र, अभद्र. भोड़ू, कपटी यानी जो मन का भोला होता है और कपटी यानी जिसके दिल में नफरत हो. मंगल, अमंगल्य. मजबूत, तकलादी. मूंगू, वाचड़. मूर्ख, डहायु यानी मूर्ख यानी बेवकूफ़ और डहायु यानी होशियार. योग्य, अयोग्य. वधारे, ओछू. ज़्यादा, कम. विधवा, सधवा. देखो विधवा, सधवा यानी जो विधवा होती है जिनके हस्बैंड जो ऑफ हो जाते हैं उनको विधवा कहते हैं. सधवा यहाँ पे हम सुहागण यूज़ नहीं कर सकते. सधवा है. सफल, निष्फल यानी हमको सफल मिलती है. सक्सेसफुल और निष्फल अनसक्सेसफुल. सरल, कठिन. सुखद, दुखद. स्पष्ट, अस्पष्ट. मोंघू, सस्तू. ऊनु, उसड़. ऊनु, उसड़. गरम, शीतल, ठंडू. अंधकार, प्रकाश. आकर्षण, अपाकर्षण यानी अट्रैक्शन जो होता है उसको कहते हैं आकर्षण. आकाश, पाताल. आशा, निराशा. इच्छा, अनिच्छा. उत्साह, निरुत्साह. उदय, अस्त. उधम, आळस. उन्नति, अवनति. काळजी, निष्काळजी यानी बेदरकारी. कीर्ति, अपकीर्ति. खरीदी, वेचाण.
गामो अड़गमो जय पराजय, देव दानव ध्यान बेध्यान, नफो नुकसान, नफो नुकसान पाप पुण्य, प्रगति अवगति भर्ती ओट, भीतर बाहर मिलन विरा, राग द्वेष लाभ गैरलाभ, वक्ता श्रोता वखाण निंदा, विवेक अविवेक शाप आशीर्वाद, शिखर तड़ेटी सगवड़ अगवड़, सर्जन विसर्जन सुगंध दुर्गंध यानी खुशबू बदबू, स्मित रुदन स्मृति विस्मृति, स्वदेश प्रदेश हाजरी गैरहाजरी, हित अहित। આ ક્રિયાપદો છે વેચવું ખરીદવું એની જો ક્રિયા चलती है, खिलવું करमવું यानी कोई चीज़ को बेचना और ख़रीदना यानी क्रिया चल रही है। खिलવું करमવું यानी फूल खिलता है और फिर बंद हो जाता है। प्रगटू बुझाऊ यानी हम दिया को जलाते हैं तो उसको प्रगटू, फिर उसको हम बुझा देते हैं। या लाइट्स भी हम करते कि लाइट जलाते हैं तो प्रगटू और बुझाऊ ये बंद कर देते हैं। सड़गावू ओलवू यानी कोई चीज़ को सड़गा देना और कोई चीज़ को बुझा देना। उगवू अथमू जैसे सूरज निकलता है और फिर शाम को क्या है अस्त हो जाता है यानी अथमू हो जाता है। फुलवू संकोचू यानी कोई चीज़ फूलती है फलती है और फिर कोई चीज़ संकोचू। तो ये था हमारा विरुद्धार्थी शब्द। ओके, इसके बाद है लिंग व्यवस्था। गुजराती भाषाમાં લિંગ પ્રકારનો લિંગના પ્રકાર है પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ। यानी पुल्लिंग यानी जो मेल वर्ड हो, स्त्रीलिंग यानी फीमेल वर्ड हो, और नपुंसकलिंग यानी जिसमें कोई जान ना हो उसको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। कि जैसे हिंदी भाषाમાં લિંગનો પ્રકારો પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગ અને ગુજરાતી ભાષાની લિંગ વિસ્તૃત સમજ। પુલ્લિંગની આપણે ડેફિનેશન જોઈ છે। પુલ્લિંગ જે સંજ્ઞાઓ નર જાતિ પુરુષ જાતિ દર્શાવે છે તેને પુલ્લિંગ કહે છે। દાખલા તરીકે છોકરો, आंबो, राजा, बड़द। यानी पुल्लिंग में कि जो पुरुष जाति दर्शाती है तो उसको हम क्या है पुल्लिंग कहते हैं। कि जैसे छोकरो, आंबो, राजा, बड़द, तो ये सब क्या है पुरुष जाति है। सामान्य रीते पुल्लिंग माटे ओ लिंग सूचक प्रत्यय है छे। दाखला तरीके रोटलो, ओटलो, गोटलो, कागड़ो। यानी पुल्लिंग में जो है हमको क्या है ओ लगाना पड़ता है यानी उसका प्रत्यय जो है। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है फॉर एग्जांपल रोटलो, ओटलो, गोटलो, कागड़ो। ओके, ओ लिंग सूचित प्रत्यय करो वगैरह घनी पुल्लिंग संज्ञाओं पण छे। दाखला तरीके चंद्र, दादा, भाई, पति। यानी ओ के बिना भी जो है बहुत सी पुल्लिंग के शब्द है। जैसे कि चंद्र, हम इसको चंद्रो नहीं कह सकते, दादा का दादो भी नहीं कह सकते, भाई का भाइयों भी नहीं कह सकते। यानी वो वाचन व्यवस्था हो जाएगा कि भाई भाइयों यानी वो उसका जमा हो जाता है। तो यहाँ पे ओ के बिगर भी हम यहाँ पे पुल्लिंग के वर्ड्स देख रहे हैं। कि કેવા પ્રશ્ન પૂછવાથી પુલ્લિંગનો બોધ થાય છે। એના પછી સ્ત્રીલિંગ જે સંજ્ઞાઓ નારી જાતિની સ્ત્રી જાતિ દર્શાવે છે તેને સ્ત્રીલિંગ કહે છે। દાખલા તરીકે ભાભી, દાદી, પત્ની, दीदी। यानी जहाँ पे फीमेल वर्जिन दर्शाता है तो उसको क्या कहते हैं हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कि जैसे दादी, भाभी, पत्नी, दीदी, बहन, ये सब क्या है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जैसे पुल्लिंग में ज़रूरी नहीं कि खाली इंसानों के लिए है, जैसे जानवरों के लिए भी। कि जानवरों में भी नर और मादा होती है। तो नर जो है वो पुल्लिंग में आएंगे और जो मादा जो है वो स्त्रीलिंग में आएंगी। जैसे बकरी,
बकरी, हिरनी, शेरनी, तो ये सब क्या स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे शेर, बकरा, ऊंट, घोड़ा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। सामान्य रीते स्त्रीलिंग માટે ઈ લિંગ સૂચક प्रत्यय છે। दाखला तरीके बकरी, रोटली, कुतरी, दिकरी। यानी देखो हमने पुल्लिंग में ओ लगा के नहीं पुल्लिंग बनता है और स्त्रीलिंग में ई लगाना पड़ता है। तो जैसे कि बकरी, रोटली, कुतरी, दिकरी। ई लिंग सूचक प्रत्यय वगરની स्त्रीलिंग संज्ञाओं પણ છે कि जैसे कि पेन, लात, वात, लू, कथा। यानी ये वर्ड जो है ई के बगैर भी हम इसको स्त्रीलिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये स्त्रीलिंग कहलाता है। केवी प्रश्न पूछवाથી स्त्रीलिंग बोध થાય છે। अब इसके बाद है नपुंसक लिंग। जे संज्ञाओથી पुरुष के स्त्री जातिने खबर पड़ती ना हो તે नपुंसक लिंग कहवाय છે। दाखला तरीके लावरू, छोकरू, गधेड़ू, खोलकू। यानी नपुंसक लिंग कैसे रहती है कि जिसमें हमको स्त्री की जाति खबर ना, पुरुष की स्त्री जाति खबर नहीं पड़ती हो तो उसको हम क्या है, नपुंसक लिंग कहते हैं। कि यहाँ पे जैसे उदाहरण दिए कि छोकरू, गधेड़ू, खोलकू। सामान्य रीते नपुंसक लिंग માટે ऊ लिंग सूचक प्रत्यय છે। देखिए दाखला तरीके માટલું, बकरू, वांदरू, कुतरू। तो नपुंसक लिंग में हमको ऊ का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल है માટલું, बकरू, वांदरू, कुतरू। ओके। ऊ लिंग सूचक प्रत्यय वगરની नपुंसक लिंग संज्ञाओं પણ दाखला तरीके मों, लसण, पुस्तक, पानी। यानी ऊ के बिना भी जो है सब कुछ नपुंसक लिंग होती है कि माँ, मों, लसण, पुस्तक, वाणी। अब इसमें आएगा केवू के केवा प्रश्न पूछवाથી नपुंसक लिंग बोध થાય છે। यानी नपुंसक लिंग में केवू के केवा प्रश्न पूछवाથી नपुंसक लिंग होता है। ओके। પુલ્લિંગ સંજ્ઞાને કેટલાક પ્રત્યય લગાડીને તેને સ્ત્રીલિંગમાં ફેરવાઈ જાય છે। જેમ कि देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है कि पुल्लिंग संज्ञा ने प्रत्यय लगाड़ीने स्त्रीलिंग में उसको ट्रांसफ़र कर देते, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सूत, तो सूता। तो यहाँ पे प्रत्यय आ लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूता। प्रियतमम, प्रियतमम, प्रियतमा। तो यहाँ भी आ लगा दिए तो क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। बालक, ये पुल्लिंग है तो इसमें इका लगा देंगे तो बालिका। नवल, ये पुल्लिंग है, इका लगा देंगे तो नवलिका। इंद्र, यहाँ पे आणी लगा देंगे तो इंद्राणी, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्षत्रिय, तो आणी लगाएंगे तो क्षत्रियाणी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। सेठ, सेठाणी। पटेल, पटलाणी। धोबी, धोबण। यानी इस तरह प्रत्यय लगा के हम इस पुल्लिंग से उसको चेंज करके स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। धोबी, धोबण। माड़ी, माड़न। वाघ, वाधण, वाघण। नाग, नागण। सुतार, सुथारण। वंजियो, वांजियो, वांजड़ी। हाथी, हथणी। दास, दासी। छोकरो, छोकरी। ओके। अब इसके आगे है પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગની કેટલીક સંજ્ઞાઓ મોટા કે નાના કદનો નિર્દેશ કરે છે कि जिसका मोटा के नाना यानी क्रम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लोटो, लोटी। पाटलो, पाटली। खाटलो, खाटली। ओटलो, ओटली। रोटलो, रोटली। चोटलो, चोटली। ठंडो, ठंडी। शीशो, शीशी। ओके। એ જ રીતે નપુંસક લિંગ અને સ્ત્રીલિંગ કેટલીક સંજ્ઞાઓ મોટા કે નાના નાનો નિર્દેશ કરે છે કે नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। માટલું, માટલી, कंडू, कड़ी। ओके। अब इसके आगे हम इसके उदाहरण देखेंगे कुछ। स्वाध्याय है प्रश्न 1, लिंग शब्द ओळखो। यहाँ पे 3 दिवेल दिया है और यहाँ पे दिवेल क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो दिवेल, तो इसका आंसर है पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है। जातड़ू, जातड़ू क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। तो जातरू जो है वो स्त्रीलिंग है। ओके। मुलाकात, मुलाकात क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो मुलाकात जो है यहाँ पे इसकी जाति का ओळख नहीं बता रहा है तो इसके लिए क्या है, ये नपुंसक लिंग। मानवी,
मानवी क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग? तो इसका भी आंसर है नपुंसकलिंग। तेज, तेज का क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? तो इसका भी, सॉरी, मानवी जो है पुल्लिंग है और तेज जो है वो नपुंसकलिंग है। ओके, इसके आगे है पुल्लिंग शब्द ओळखो, रानी, राजा या धोबण। अब इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या है, रानी जो है वो स्त्रीलिंग है, धोबण तो वो भी स्त्रीलिंग है, तो राजा क्या है वो पुल्लिंग शब्द है। ओके, स्त्रीलिंग शब्द ओळखो, भूमि, नौकर, पोटलू। तो क्या आएगा इसका आंसर, नौकर जो है वो पुल्लिंग है, पोटलू वो भी पुल्लिंग है, तो भूमि जो है वो क्या है वो स्त्रीलिंग है। ओके, नपुंसकलिंग शब्द ओळखो, गाय, बળદ या वाछड़ू? तो इसका आंसर है वाछड़ू। નીચેના શબ્દોના લિંગ બદલો, દીકરી, દીકરો, માળી, માણન, હાથી, હથણી, પ્રિયતમ, પ્રિયતમા, દાસ, દાસી, સુથાર, સુથારણ, પતિ, પત્ની, નોકર, નોકરાણી, સેઠાણી, सेठ, गोर, गोराणी, जेठाणी, जेठ, सोनी, सोनारण, पटेल, पटलाणी, लोटी, लोटो, सीसो, सीसी, छोकरी, छोकरो। तो यहाँ पे हमारा ये लिंग व्यवस्था कंप्लीट होता है। ओके, बाय।